what is the name of this project? The project name is DC microgrid. It is sometimes called as a universal DC microgrid. Sometimes it is also called as a hybrid DC grid. Hybrid grid. Okay. Here we have used the three sources. Okay. The first source, it is the utility source. Okay. It is the main source which is getting from the 230 power supply. Okay. Second source is solar. Okay. And third source is wind energy. Okay. So right now, so there is no wind, so that's why this light will not be glow. Okay. When we on this, okay, you can see there. Okay. So this one LED will be glow, but this what supply is off. We can say that this is our microcontroller main circuit, and this is our the inverters. It converts the low level voltage, high level voltage into the low level voltage, so that microcontroller only work on the low level logic or low voltage. Okay. See here. So this is our microcontroller. Yes. 89S52. It is the 14 pin. Okay. So this is the LCD 16/2. These are the two power supply 7805 and 7812. 7805 which is required for the microcontroller and LCD. That's why we have used the 7805 and 7812 because we have used the relay and its relay is required the 12 volts. That's why we have used the another regulator that is called as a 7812. Okay. So now this is the filters. It is the electrolytic capacitor which is used over here 63 volt. Okay. And 1000 microfarad. Okay. So these are the two paper capacitors we have used along with the each regulators. Okay. So now here we have used the rectifiers. Okay. So you can see here this is the rectifier. So this is the sliding switch. Whenever we press this button, slide this button, the power supply will be available over here. Okay. Okay. This is the transformers. Okay. So we have used the 12 volt, 2 milliampere transformers over here. So, okay. So this is the normal transformer. It is not a center type transformer. So, okay. So so this LCD which is connected to port 0 and port 1. Okay. And now so our load, this is the 230 volt load which is connected to the port 3. Okay. Via the relay and the relay driver circuit, this one transistor. Okay. So we have used the BC547 transistors. Okay. This transistor drive this relay and relay is drive the bulb. I got this? Yes. Okay. So now, so these are the sources. Okay. We have connected to the microcontroller through this circuitry. Okay. So here we have used the port 2. Okay. These are all the source signals which are getting to the port 2 of the microcontroller. So now here we have used the 7404 IC. Okay. It is called the inverter IC. Is that clear? Yes. So now you can see there, this is the one source. Okay. This LED will be on. Yes. Okay. So this source getting to the microcontroller through this IC. Similar over here also. Okay. When we focus these lights, okay, then this relay will be generate the electric voltage. This electric voltage or voltage which is given to this LED. You can see this LED little bit is glow. Yes. I got this? Yes. Is that clear? Working of this project, how does it work? See, so this one microcontroller continuously scanning or polling the three sources which are available in this environment: the wind energy, solar energy, and utility source. Okay. So optimum voltage, okay, which is scanned by this microcontroller, and according to that it connect to the load. Okay. सपोज मान लो अगर सोलर एनर्जी ज़्यादा है तो सोलर एनर्जी कनेक्ट होगी और एलसीडी पे डिस्प्ले होगा कि सोलर इज अवेलेबल एंड विच इज कनेक्टेड टू द लोड. अगर विंड एनर्जी अवेलेबल है तो वो बोलेगा कि विंड एनर्जी अवेलेबल है. ठीक है. और विंड एनर्जी कनेक्ट किसको किया? लोड को. ठीक है. क्वेश्चन है सर. अगर सपोज मान लो
यहाँ पे देखो, अगर सोर्स ये कौन सा है हमारा, यूटिलिटी सोर्स है, और ये अपना विंड एनर्जी है, और दोनों में से अगर दोनों अवेलेबल है, यूटिलिटी सोर्स तो फॉरएवर रहेगा और विंड है, तो वो क्या करेगा कि ये जो विंड है ये कौन सा रेन्यूएबल है, रेन्यूएबल एनर्जी है, तो ये कनेक्ट करेगा किसको, लाइट को, ठीक है, लोड को। उसके बाद अगर सोलर और विंड ये दोनों अवेलेबल है, तो विंड को लेगा, ठीक है, तो वो सोलर या विंड को दोनों को कनेक्ट कर देगा, दोनों ठीक को है, एक साथ कर सकता है। कर सकता है। तो या एक को किसी को एक भी कनेक्ट कर सकता है वो, ठीक है। अगर ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, सोलर या विंड में से जो ऑप्टिमाइज है वो क्या करेगा, उसको कनेक्ट कर देगा लोड को, ठीक है। ये हम अभी प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। देखो पहले मैं इसको, जब भी इस प्रोजेक्ट को कोई प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो क्या करने का, इसको रिसेट मार देगा, सब प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। वेलकम, दिस इज यूनिवर्सल डीसी माइक्रोग्रिड, ARKTEC, वेलकम इन फील्ड, प्लीज ऑन एनी सोर्स, लोड डिसकनेक्टेड। लोड क्या है हमारा, डिसकनेक्टेड, क्योंकि कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विंड को घुमा देता हूँ। जैसे विंड को घुमा देगा तो ये एनर्जी जनरेट करेगा हमारा, ठीक है। ये क्या है, हमारा डायनामो है, तो ये क्या करेगा, डायनामो एनर्जी, ये लाइट्स हम ब्लिंक होगा यहाँ पे, ठीक है। ये लाइट जैसे ब्लिंक होगा वहां पे होगा कि विंड इज कनेक्टेड, और यहाँ पे लोड क्या होगा हमारा, ऑन होगा, ठीक है। हो गया, लोड कनेक्ट हुआ, दिख रहा है यहाँ पे। अभी मैंने घुमाना बंद कर देता हूँ, हो गया। अभी क्या करो तुम, ये स्विच दबा के रखो। हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मेन सप्लाई कनेक्टेड, लोड इज ऑन हो गया, ठीक है। अभी वैसे रखो, मैं यहाँ पे चालू कर देता हूँ। क्या हो रहा है, विंड एंड मेन सोर्स आर अवेलेबल, ठीक है, विंड कनेक्टेड। क्या हुआ यहाँ पे, विंड कनेक्टेड, आप वो छोड़ दो, विंड कनेक्टेड, ठीक है। और उस तरह से यहाँ पे भी, ठीक है, सोलर और विंड। तो लेकिन यहाँ पे ज्यादा वो इसको ये चाहिए, ठीक है। इसके कारण मैंने क्या किया, एक ऑप्शन रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही है, इसको कनेक्ट कर देने का, ठीक है। इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, सोलर कनेक्टेड, ठीक है, लोड इज ऑन। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सोलर भी कनेक्ट करता हूँ, विंड भी कनेक्ट कर देता हूँ। थोड़ी देर बराबर, हाँ ठीक है, इट्स ओके। विंड सिस्टम, विंड को क्या कर रहा है, वहां पे कनेक्ट कर रहा, ठीक है। इसको लगाओ ना बेटा, सोलर इज कनेक्टेड, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे करते जाएंगे, अभी क्या सोलर का वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट होता है ना, इसके लिए मैंने ये दिया आपको, फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए वोल्टेज, वो भी है ना ब्लैक बुक के कंटेंट में। हाँ। अभी देखो एक्सप्लेनेशन करता हूँ मैं पहले, तो मतलब ऐसा स्टार्ट से की फ्लो कहाँ से आ रहा है, स्टार्ट, ये देखो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, 230 पावर सप्लाई से यहाँ पे 230 वोल्ट पावर सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे 12 वोल्ट होता है उसका, स्टेप डाउन है, ये 12 वोल्ट यहाँ पे जाता है बटन ऑन करने के बाद। और उसके बाद यहाँ पे एक रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर से वो रेक्टिफायर होता है, उसके बाद उसको फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद रेगुलेट होता है। रेगुलेटर हमने इसलिए यूज किया कि स्टेबलाइज द वोल्टेज, मेंटेन दी स्टेबिलिटी, +5 वोल्ट कॉन्स्टेंट वोल्टेज के कारण हमने दो रेगुलेटर यहाँ पे यूज किए। उसके बाद ये जो फिल्टर, ये कैपेसिटर यूज किए वो उसके लिए रिपल कंटेंट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अभी जाता है हमारा माइक्रो कंट्रोल सर्किट। माइक्रो कंट्रोल सर्किट के लिए इम्पोर्टेंस रहता है रिसेट सर्किटरी और ऑसिलेटर सर्किटरी। यहाँ पे जो क्रिस्टल है ये 12 मेगाहर्ट्ज का है, ठीक है। हाँ, तो ये क्लॉक जनरेट करता है। ये जो दो कैपेसिटर है, पेपर कैपेसिटर है, ठीक है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, हमारा क्रिस्टल है, ठीक है। ये कितना जनरेट करता है, 12 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ये 12 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पिन नंबर 90 और पिन नंबर 18 को जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये रिसेट सर्किटरी है, ठीक है। ये रिसेट सर्किटरी यहाँ पे जो कैपेसिटर यूज किया पिन नंबर 9 को, और ये यहाँ पे रजिस्टर यूज किया 8.2 K का, ठीक है। तो इसके कारण जैसे प्रेस करते तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है वाया दी पिन नंबर 9, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोल स्टार्ट वर्क फ्रॉम द फर्स्ट मेमोरी लोकेशन, ठीक है, उससे वो स्टार्ट होता है। उसके बाद है ये जो है
इसका जो रिले कनेक्ट किया ये कहाँ पे यूज़ किया हमने, पोर्ट 3 को, ठीक है। अब पोर्ट 3 को हमने यहाँ पे पुल अप रजिस्टर लगाया, ये उसको बोलते पुल अप रजिस्टर, ओके। ठीक है। ये है 10K का, ठीक है। तो ये पुल अप रजिस्टर से क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट ये जो लॉजिक है 5 वोल्ट का मेंटेन करके इसको देता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो रिले में जो कॉइल रहता है उसमें से करंट कौन पास करता है, ये ट्रांजिस्टर, ठीक है। वो 12 वोल्ट, इसका जो 12 वोल्ट है वो कहाँ से मिल रहा, इस आईसी से, ठीक है। वो कनेक्ट हो रहा कॉइल से, जैसे कॉइल वो एनर्जाइज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर वो कांटेक्ट को बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारा लोड कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम SCR भी लगा सकते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस भी लगा सकते हैं, ओके। उसके बाद फिर ये है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ठीक है। तो उसके बाद ये रजिस्टर है 1K का, ठीक है। एंड ये LED है, इट इज इंडिकेट द पावर सप्लाई, whether power supply available or not, it is indicate, okay. So now then, पावर सप्लाई मतलब तीनों में से कोई भी ना, हाँ तीनों में से कोई भी नहीं, कि ये अपना हमारा मेन पावर सप्लाई, इसको वोल्टेज लगता है ना कंटिन्यूसली चालू करने के लिए, ठीक है। और ये हमारा LCD 16/2 का, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ये इन्वर्टर सर्किट्स है, ये इन्वर्ट करता है वोल्टेज, ठीक है। अभी यहाँ पे पावर सप्लाई अवेलेबल है कि नहीं विंड का, तो ये LED इंडिकेट करेगा, और यहाँ पे हमारा सोलर का इंडिकेट करेगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो हम डिस्प्ले करेंगे, ये प्रेस करेंगे बटन, तो यहाँ पे LCD पे दिखेगा, ठीक है। इधर क्लियर, हाँ। तो यहाँ पे जो समर सर्किट वगैरह जो बोलते हैं प्रोटेक्शन के लिए हमने ये लगाया, ठीक है। और रिवर्स करंट अगर ऑटोमेटिकली आ जाता है तो इट कांट पास थ्रू दिस सर्किट विल गेट डैमेज ड्यू टू द रिवर्स वोल्टेज, ओके। जिसके कारण हमने क्या किया, यहाँ पे डार्ड यूज किया, PN जंक्शन डार्ड यूज किया 1N4007 का, ठीक है। सेम थिंग सोलार का भी, सोलार का ज़्यादा वोल्टेज रहेगा, ठीक है। तो गलती से हमने पॉजिटिव का नेगेटिव का पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, तो ये जो बैटरी यहाँ पे जो ये दूसरा डार्ड है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। इधर क्लियर। अभी इस IC, ये जो हमारे IC है 7404 की, ठीक है। वो क्या करेगा, लॉजिक देगा इसको 01 का, ठीक है। तो उस लॉजिक हमने कहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये सारे सोर्स का पिन पोर्ट 2 को यूज किया, ठीक है। पिन नंबर 2.1, 2.2, 2.3 को, ठीक है, ओके। इधर क्लियर, एड आउट सर अगर